Hello friends, this is Aswani Sadhana Arjun, and today we are going to start a very important topic of Indian Penal Code, that is journal exceptions under Indian Penal Code. Chapter 4 of Indian Penal Code deals with the journal exceptions. It covers the section 76 to 106. But we have to understand what is the object or what is the real meaning of journal exceptions. As we have discussed in our earlier lecture in Law of Tort and under Indian Penal Code, that every person has some legal rights, and rights and duties are correlative to each other. So we can say whenever any person has some legal right, there must be some legal duties. And we have discussed earlier that whenever there is violation of a legal right of a person by the act or omission of any other person, then it is called a wrong. But if that person has some legal justification for his or her act, then that particular act will not be considered as a wrong, because that person has some legal justifications. So we can say general exceptions or defenses under law of tort are justifications, or we can say legal justifications for a wrongful act. And if any person proves that the particular act falls in the general defenses or general exceptions, then that person may not be held liable for that particular wrongful act. So if we want to understand the whole concept of general exceptions under chapter 4 of Indian Penal Code, and it deals with section 76 to section 106. To understand this very topic, we can divide this particular topic under 7 heads. That is, first, mistake of facts. If any person proves that the particular act for which he is going to be arrested or prosecuted, and if that act is due to mistake of facts, then that person will not be held liable. And mistake of facts, section 76 and section 79. After that, judicial acts, or we can say privileged act. There are some privileges to judiciary, and judicial acts are under section 77 and section 78 of Indian Penal Code. Third one is accidents. Accidents under section 80. After that, absence of criminal intention. If there is any absence of criminal intention, that those acts will be under general exceptions of Indian Penal Code under section 81 to 86 and section 92 to 94. Fifth one is acts done with or without consent. As we have discussed under law of tort, volenti non fit injuria. If a person gives his or her consent for any wrongful act or for any act, then later on that person is not supposed or is not allowed to get the remedy for that particular act. Sixth one is Trifling Act under section 95, and a private defense under section 96 to 106. तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है जनरल एक्सेप्शंस का। एक्चुअली में जनरल एक्सेप्शंस होता क्या है, या टॉर्ट में जनरल डिफेंसेस जैसे हमने पढ़े हैं,
हम जानते हैं कि हर पर्सन के कुछ लीगल राइट्स होते हैं एंड दोज लीगल राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी और बाय द सोसाइटी। जो सोसाइटी है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, उन सबके द्वारा वो जो राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रोटेक्ट होने चाहिए। और कोई भी पर्सन अगर रॉन्गफुल एक्ट करता है और ऑफेंडर या टॉर्ट की हम बात कर लें तो टॉर्ट फीचर वो तभी कहलाएगा अगर उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है उस काम के लिए। और अगर उसने जो एक्ट किया है, और हो सकता है वो एक्ट जो है वो किसी क्राइम के सभी इसेंशियल्स को फुलफिल करता हो, इवन देन दैट पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल इफ देयर इज एनी लीगल जस्टिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। अगर उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। अब ये जो लीगल जस्टिफिकेशन है यही है इंडियन पीनल कोड में जनरल एक्सेप्शंस के नाम से दिए गए हैं और टॉर्ट में जनरल डिफेंसेस के नाम से दिए गए हैं। यानी कि कोई बंदा ऑफेंस करे, उसको प्रोसिक्यूट किया जाए और अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसने जो काम किया है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की वजह से किया है, ठीक है, तो फिर वो गिल्टी नहीं माना जाएगा और ये उसको पूरी तरीके से बचाव देते हैं। जनरल एक्सेप्शंस जो है वो पूरी तरीके से उसको बचाव दे देते हैं। अब टोटल जो जनरल एक्सेप्शंस है ये चैप्टर 4 ऑफ इंडियन पीनल कोड में दिए गए हैं। ये सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक दिए गए हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन जनरल एक्सेप्शंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। और वी कैन से टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस अंडर इंडियन पीनल कोड वी मे डिवाइड the whole concept in 7 parts। फर्स्ट जैसे हमने क्या कह दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये सेक्शन 76 और 79 से गवर्न होता है। जुडिशियल एक्ट्स और प्रिविलेज्ड एक्ट, कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं, ये सेक्शन 76 और 78 से गवर्न होगा। एक्सीडेंट्स सेक्शन 80 में आ जाएगा। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, ये एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन होता है जो हमें देखना है सेक्शन 81 से सेक्शन 86 तक, डिटेल में पढ़ेंगे हम, और सेक्शन 92 से 94 तक। इसके बाद आता है एक्ट डन विद और विदाउट कंसेंट, कभी कभी विद कंसेंट होगा, कभी हम देखेंगे विदाउट कंसेंट होगा। ये हमें देखना है सेक्शन 86 से 91 तक। इसके बाद आता है ट्रिफलिंग एक्ट। ट्रिफलिंग एक्ट कहते हैं बहुत पिटी एक्ट्स होते हैं जिसको एक प्रूडेंट पर्सन जो है उसके होने पे कोर्ट में नहीं जाएगा, तो उसको हम देखेंगे सेक्शन 95 में। और इसके बाद 7th पॉइंट हमारा आता है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस आपने सुना होगा। प्राइवेट डिफेंस जो है वो सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक डील करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ना। देखिए, सबसे पहले तो हम अपना देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ये सेक्शन 76 से 79 को डील करेगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ जनरल चीजें देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे टॉपिक को समझने के लिए। एक तो जब भी ये पूरा जनरल एक्सेप्शंस का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट कॉन्सेप्ट विल बी रेड विद सेक्शन 6 of IPC and section 105 of Indian Evidence Act 1872। अब पूरा जो जनरल एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट है, केवल यही नहीं, पूरा जब भी जनरल एक्सेप्शंस हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड और एक सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब
सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता था कि अगर कोई भी डेफिनेशन, कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन इंडियन पीनल कोड में जब भी पढ़ा जाएगा तो ये जनरल डिफेंसेस के साथ पढ़ा जाएगा, चाहे अलग से ये बात कही गई हो या ना कही गई हो। और वी कैन से व्हेनेवर एनी डेफिनेशन, एनी इलस्ट्रेशन, एनी एक्सप्लेनेशन विल बी रीड under Indian Penal Code, then it will be read with general exceptions provided under section 76 to section 106 of chapter 4 of Indian Penal Code. Whether these exceptions are repeated or not, चाहे हर बार ये बात कही गई हो ना कही गई हो, जब भी कोई ऑफेंस, कोई इलस्ट्रेशन, कोई एक्सप्लेनेशन आएगा तो उसमें ये माना जाएगा कि जनरल एक्सेप्शंस की बात की गई है। एक तो ये कहता है सेक्शन 6। सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी डिफेंस का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे ही ये प्रूव करना होगा कि वो इस डिफेंस को ले सकता है। जैसे अगर कोई पर्सन ये कहता है कि ये जो एक्ट हुआ है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ, ये किसे प्रूव करना होगा? जो ये कहता है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ में एक वर्ड आता है ओनस, ये आप इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ का जो ओनस यानी कि जो भार होता है वो किस पे होता है। तो देखिए जनरल रूल तो ये है, ये हमेशा होता है उस पर्सन से जो कहता है कि उसे लेना है फायदा। जैसे मान लीजिए कोई भी कहता है कि हमने ये जो मर्डर किया है ये विद इंटेंशन नहीं किया है, हमने ये किया है प्राइवेट डिफेंस में, क्योंकि ये अगर हम इसे नहीं मारते तो ये हमें मार देता, तो अपने आप को बचाने के लिए मजबूरन हमें इसे मारना पड़ा। तो अब ये हम ही को प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमने जो किया है ये प्राइवेट डिफेंस में किया है। और यहां पे एक प्रिजम्पशन होती है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि ये जनरल डिफेंस में नहीं हुआ है। प्रिजम्पशन जनरल डिफेंस के ना होने की होती है और आपको प्रूव करना होता है। अब एक्चुअली में पढ़ना तो आपको एविडेंस में, लेकिन अगर अच्छे समझना है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि टोटल बर्डन जो है हमेशा इसी पे रहेगा। इसको अगर आपको समझना है तो आप रैकेट जैसे खेलते हैं तो उसमें जो सिटिल होती है उसको आप समझ लीजिए ओनर्स। तो जब ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात होती है तो आप ये समझिए कि जो फर्स्ट सर्विस होती है वो करने का राइट इसको होता है केवल, यानी फर्स्ट सर्विस इसको करनी है। अब होगा क्या, इसने सर्विस कर दी, दूसरा वाला क्या करेगा, वो वापस इसकी तरफ कर देगा, ये फिर उसकी तरफ कर देगा, और जिसकी तरफ वो गिर जाएगी सिटिल, इसका मतलब क्या हुआ, वो हार जाएगा। ठीक, तो जब भी ये होता है ये शिफ्ट करता रहता है बर्डन, लेकिन इनिशिएशन किसकी तरफ से होगा, जो ये डिफेंस का फायदा लेना चाहेगा। मींस सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि जो भी पर्सन जनरल डिफेंसेस का, जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेना चाहता है उसे ही प्रूव करना होगा कि उसका एक्ट जो है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है। ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम देखते हैं सेक्शन 76 और सेक्शन 79। देखिए दो मैक्सिम है, इग्नोरेंसिया फैक्टी डेथ एक्सक्यूजेट। एक्चुअली में ये डेथ जो है ये ES को DTH लिखते हैं, तो लैटिन मैक्सिम है, इसको आप पढ़िए इग्नोरेंसिया फैक्टी डेथ एक्सक्यूजेट। दूसरी होती है इग्नोरेंसिया ज्यूरिस, नॉन एक्सक्यूजेट। ये दो लैटिन मैक्सिम है।
इसका मतलब होता है कि ignorance of fact may be excused, but the other maxim is ignorantia juris non executed, means ignorance of law can't be excused. ये दो मैक्सिम हम ये कहती है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो एग्जीक्यूट की जा सकती है, एक्सक्यूज की जा सकती है, जस्टिफिएबल है वो, अगर कोई पर्सन ये प्रूव कर दे कि उसका एक्ट जो है वो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की वजह से है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से है, तो उसे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन किसी भी पर्सन को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो ये कह दे कि हमें जो है वो लॉ की जानकारी नहीं है, वरना तो बहुत आसान हो जाएगा। हर पर्सन जो है वो क्राइम करने के बाद यही कह देगा कि सॉरी भाई, हमें तो ये पता नहीं था कि ये क्राइम है, और आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना करें। आपने कोई भी ऑफेंस कर दिया, मान लीजिए आपने क्या किया, किसी के सर पे पत्थर मार दिया, उसका सर फूट गया, इसके बाद पुलिस से कहा कि अरे ये आपने क्या किया? बोले हमने पत्थर मार दिया, इसका चेहरा हमें अच्छा नहीं लग रहा था। बोले लेकिन ये तो हमें लग रहा है कि ब्लड निकल रहा है पूरा। हाँ, लग तो हमें भी रहा है कि ये ब्लड है। अब वो कह रहे ये तो मर गया है। बोले हाँ, हिल तो नहीं रहा है, लग तो हमें भी रहा है कि मर गया है। बोले अब तो तुम्हें सजा होगी, ये तो 302 में पनिशमेंट है इसके लिए, ये तो आपने मर्डर कर दिया। कह रहा अच्छा कि आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये मर्डर है, चलो आगे ध्यान रखेंगे, अब हमें पता लग गया, आगे हम नहीं करेंगे। तो ये नहीं अलाउ किया जाता है, चाहे आप इंडियन सिटीजन हो, चाहे आप बाहर से आए हो, इवन आप जिस भी कंट्री में होंगे, वहां के लॉ की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इग्नोरेंसिया फैक्टिव डेथ एग्जीक्यूट होता है, बट इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट होता है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूजेस, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूजेस। कभी भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि आपको लॉ की जानकारी नहीं है। हाँ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब ये जो हम अगर देखें तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की बात करता है सेक्शन 76 और सेक्शन 79। एक्चुअली में दोनों में है क्या, सेक्शन 76 और सेक्शन 79 ये बात करते हैं अगर कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे है, कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है, तो उसको सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं। सेक्शन 76 की अगर हम बात करें, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन, एक तो गुड फेथ आता है, वो हर जगह आएगा कि वो काम कैसे कर रहा हो, गुड फेथ में कर रहा हो, और दूसरा वो आता है बाउंड बाय लॉ। एक पर्सन जो या तो बाउंड बाय लॉ है, या वो ये बिलीव करता है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है कोई काम करने के लिए, और उस काम को वो कैसे कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, विद बोनाफाइड इंटेंशन कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई उससे गलती हो भी जाती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो भी जाती है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया और उसे बेनिफिट मिल जाएगा किसका, सेक्शन 76 का। अब गुड फेथ का क्या मतलब है? गुड फेथ आपने देखा था, हम लोगों ने सेक्शन 52 में पढ़ा था, और ये होता है प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन। पूरी तरीके से प्रिकॉशन रखा है आपने, प्रॉपर केयर की है, ये किसका मतलब हुआ, गुड फेथ का मतलब हुआ, जो सेक्शन 52 में डिफाइन है। अब गुड फेथ में अगर कोई काम कर रहा है, या तो वो बाउंड बाय लॉ है, या वो ऐसा रीजन रखता है, ऐसी बिलीफ रखता है, या ऐसी बिलीफ रखने का उसके पास रीजन है कि वो बाउंड बाय लॉ है, और ऐसी केस में अगर कोई भी मिस्टेक वो कर देता है, तो वो क्या माना जाएगा, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। जैसे मान लीजिए एक कोई कोर्ट ऑफिसर है, इसको भेजा गया है कि जाओ मिस्टर एक्स को आप लेके आओ जाके, किसी पर्टिकुलर जगह पे मिस्टर एक्स है, उसको आपको पकड़ के लाना है। अब ये मिस्टर एक्स को पकड़ने गया, काफी छानबीन के बाद, पूरी प्रॉपर केयर और कौशल लेने के बाद, और इन गुड फेथ, इसने क्या हुआ, मान लीजिए वहां पे एक्स नाम के 3 पर्सन थे एक जगह पे। अब एक्चुअल में इसको लाना है, तो भेजा गया था इस वाले एक्स को, अब ये ले आया है इस वाले एक्स को। अब जब ये इस वाले एक्स को ले आया है,
यहाँ पता लगा कि ये तो गलत आदमी है, बोले भाई इसको छोड़ दो, सॉरी बोल दिया, भाई आपको जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए सॉरी, अब आप जाइए। अब एक्स ने केस कर दिया इनके ऊपर, तो भाई आपने हमें टाइम बर्बाद किया हमारा, जबरदस्ती आप लेके गए, कोई रीजन भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है इसको बेनिफिट मिल जाएगा किस बात का, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का अंडर सेक्शन 76, कि ये बाउंड बाय लॉ था उसको लाने के लिए। हाँ, वहां पे एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट इससे हो गई है, तो अब जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है इसकी वजह से ये क्या करेगा, बेनिफिट ले लेगा सेक्शन 76 का, और कोई भी ऑफेंस इसने नहीं किया है। दूसरा, मान लीजिए कि कोई ऑफिसर जो है वो एक्स है, कोई उसका ऑफिसर उसको ये ऑर्डर करता है कि यहाँ पे ये लोग हैं और इन सबके पास क्या है, आर्म्स है, और उन्हें पता है, कहता है कि इनको आप गोली मार के मारो या इनको अरेस्ट करो। अब ये पर्सन अगर इनको गोली मारता है, ठीक है, या यहाँ पे मारते समय कोई इसको मिस्टेक भी हो जाती है फैक्ट की, तब ये जो है कोई ऑफेंस नहीं करता है और इसको बेनिफिट मिल जाएगा किसका, सेक्शन 76 का। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि कोई भी ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर का इलीगल ऑर्डर मानने के लिए बाउंड नहीं है। मीन्स नो ऑफिसर इज बाउंड टू ओबे द इलीगल ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। मान लो यहीं पे हम क्या करें कि यहाँ पे तो आर्म्स वगैरह सब थे, ठीक, जस्टिफाइड लग रहा था, लॉजिकल लग रहा था। अब मान लीजिए कोई एक्स फिर है, इसके ऑफिसर ने कहा यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, अब अच्छे से पता है कि इनके पास कुछ आर्म्स नहीं है, बस ये लोग क्या कर रहे हैं, गैम्बलिंग खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं बैठे हुए अंदर, या और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इजिली है ये जाके इनको अरेस्ट कर सकता है। इवन देन अगर ये ऑफिसर ऑर्डर देता है एक्स को कि आप जो है वो गोली चलाओ, मार दो सबको, और अगर ये एक्स गोली चला के सबको मार देता है तो यहाँ पे एक्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 76 का। क्यों? क्योंकि सेक्शन 76 में आप केवल लीगल ऑर्डर मानने के लिए बाउंड है, इलीगल ऑर्डर मानने के लिए आप ऑफिसर के लिए भी बाउंड नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब इसको पनिशमेंट दिया जाएगा उस समय इसकी सजा, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, वो डिसाइड करते समय ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इसने जो काम किया था वो अपने ऑफिसर के ऑर्डर से किया। एक तो ये चीज हुई। बात करते हैं सेक्शन 79 में, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, गुड फेथ में होना चाहिए, बस सेक्शन 79 और सेक्शन 76 का जो डिफरेंस है, जैसे सेक्शन 76 में हमने क्या देखा था, इसमें था बाउंड बाय लॉ, और जो सेक्शन 79 है इसमें होता है जस्टिफाइड बाय लॉ। इसमें बाउंड होता है, उसमें जस्टिफिकेशन होता है कि वो जस्टिफाई करता है अपने आप को, उसके पास जस्टिफिकेशन होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन ये है, वो देख रहा है कि एक्स जो है वो जेड को मार रहा है, ठीक, ए ने क्या किया, जाके एक्स को पकड़ लिया और इसे ले आया पुलिस के पास। अब यहां आने के बाद इसको पता लगा कि एक्चुअल में एक्स जेड को नहीं मार रहा था, जेड एक्स को मार रहा था, और एक्स अपने आप को बचाने के लिए अब जेड को मार रहा था, यानी कि एक्स जो काम कर रहा था ये कर रहा था प्राइवेट डिफेंस। अब यहाँ पे जो ए है इसको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 79 का, कि ये न्यायानुमत है, ये जस्टिफाइड है इसके लिए। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन किसी दूसरे की बॉडी और अपनी बॉडी की रक्षा के लिए, अभी हम आगे देखेंगे प्राइवेट डिफेंस में, वो दूसरे को मार तक सकता है, ठीक। तो अब ए को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा किसका, सेक्शन 79 का, और ये माना जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है।
या मान लीजिए जैसे हम ही हैं, कोई पर्सन ए है और पानी की बोतल दो हैं, सेम है बिल्कुल, मेरी भी बिल्कुल सेम है और स्टूडेंट्स की भी सेम है। और क्लास में मान लीजिए हमने सामने अपनी भी बोतल रख दी है, स्टूडेंट्स की भी रख दी है, और जाते समय हमने क्या किया, स्टूडेंट्स वाली बोतल जो है वो उठा के चल दी है। यहाँ पे हमने कोई चोरी नहीं की है। सेक्शन 79 का हमको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ केसेस और हैं, वो आप देख लीजिए। एक है चिरंगी वर्सेज स्टेट। चिरंगी वर्सेज स्टेट। चिरंगी वर्सेज स्टेट में क्या होता है कि एक पर्सन इस मिस्टेक में कि सामने जो उसके घर में रात में ये कोई टाइगर है, ठीक है, और टाइगर के धोखे में अपने लड़के को ही मार देता है। अब एक्चुअली में देखिए, ये अभी आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। ये कहना बहुत आसान है, ठीक है, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि एक केस में जजमेंट आने में कई साल लग जाते हैं। कि केवल इतना कहना कि वो गुड फेथ में काम कर रहा हो, आसान बात है, लेकिन ये प्रूव करना कि वो गुड फेथ में काम कर रहा था, उसे नॉलेज नहीं थी, बोनाफाइड इंटेंशन उसके पास नहीं था, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, ये सब चीजें जब प्रूव होंगी तब बेनिफिट मिलेगा जाके। तो यहाँ पे ये माना गया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है और इसको इस चीज का बेनिफिट दिया गया। चिरंगी वर्सेस स्टेट। एक्चुअली में ये है क्या, जुडिशरी में ये सब इलस्ट्रेशन करके क्वेश्चंस बनते हैं वो। अब हम बात करते हैं प्रिविलेज्ड या जुडिशियल एक्ट्स की। तो नंबर 2 जो हमारा था, जुडिशियल एक्ट्स में एक तो हमें देखना है सेक्शन 78 और एक देखना है सेक्शन 78, यानी सेक्शन 77 और सेक्शन 78। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग, जब कोई जज एज ए जुडिशरी काम कर रहा है, उस समय अगर उससे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए पनिशमेंट नहीं बनता था उसका, लेकिन जज से मिस्टेक ही हो गई और उसने किसी को पनिशमेंट दे दिया, ठीक है, हाई कोर्ट में जाके हो सकता है वो चेंज भी हो जाए, तो अब इस जज को जो है वो आप केस नहीं कर सकते इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि सेक्शन 77 जो है इसको वो बेनिफिट देता है। सेक्शन 77 ये कहता है कि कोई जज भी अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान कोई मिस्टेक कर देता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 77 का, और वो किसी भी मिस्टेक के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग द जुडिशियल वर्क। अब मान लो जज साहब जो है वो रात को टहलने जा रहे हैं, वहां इनको कोई आदमी मिल जाता है, उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती है, उसको गोली मार देते हैं, वहां इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट केवल मिलेगा जब ये एज ए जुडिशरी काम कर रहे होंगे। ये तो 77 बात करता है। 78 बात करता है जुडिशियल ऑर्डर से बचाव देता है। सेक्शन 78 किससे बचाव देता है? ये जुडिशियल ऑर्डर से अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बचाव देता है। मतलब अगर जुडिशरी ने कोई ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते समय अगर कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। आप अगर ये कह सकते हैं कि अगर कोई जज किसी को फांसी की सजा देता है, ठीक है, तो जज जब फांसी की सजा दे रहा है तो उसको बचाएगा सेक्शन 77, यानी कि सेक्शन 77 का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। और जो जल्लाद उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन में उसे फांसी पे लटकाता है उसको बचाव मिलेगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया सेक्शन 78 में। तो सेक्शन 77 और 78 में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी कुछ भी नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन 7 जो है ये जुडिशियल एक्ट्स की बात करता है और सेक्शन 77 जो बात करता है ये जज को बचाव देता है और 78 जो है जज के ऑर्डर से जल्लाद को बचाव देता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट हमारा एक्सीडेंट।
एक्सीडेंट भी डिफेंस है। और एक्सीडेंट जो डिफेंस है, ये डिफेंस है सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब एक्सीडेंट के डिफेंस के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे सबसे पहली बात है, एक कोई लॉफुल एक्ट हो रहा हो। लॉफुल एक्ट जो है वो लॉफुल मीन्स से हो रहा हो। मीन्स मतलब साधन, जो एक्ट है वो मतलब अनलॉफुल एक्ट का आप बेनिफिट नहीं ले सकते कि अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं फिर कह दो एक्सीडेंट हो गया, फिर कह दो अरे भाई हमसे तो गलती हो गई, धोखे से मर गया, हम तो एक्स को मारने जा रहे थे, ये तो जेड आ गया बीच में, एक्सीडेंट हो गया। कोर्ट कहेगा नहीं नहीं यार, जो काम कर रहे थे वो पहले से इलीगल था। यानी कि एक्सीडेंट के लिए पहली बात तो लॉफुल एक्ट हो, और जो मीन्स है, जो साधन है, वो भी क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। इसके बाद आप जो काम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इन गुड फेथ। गुड फेथ कहां दिया है, सेक्शन 52 में। इसका क्या मतलब है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन। एक्सीडेंट के लिए सबसे पहले तो लॉफुल एक्ट हो, लॉफुल मीन्स हो, इन गुड फेथ हो, और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट हो। पर्सन हैज नो क्रिमिनल इंटेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। लॉफुल एक्ट हो, मीन्स लॉफुल हो, गुड फेथ में काम कर रहा हो, और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट हो, कोई भी उसका क्रिमिनल इंटेंशन ना हो। इसके बाद भी अगर मिसफॉर्च्यून से बाय मिसफॉर्च्यून जो है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सेक्शन 80 उसका बचाव करेगा, और कोई भी उसने ऑफेंस नहीं किया है। बट एक्सीडेंट का बचाव लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें प्रूव करनी होंगी सेक्शन 80 में। फर्स्ट, आपका जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। सेकंड, आपके मीन्स भी लॉफुल होने चाहिए। थर्ड, आप इन गुड फेथ काम कर रहे हो। फोर्थ, यू हैव नो क्रिमिनल इंटेंशन टू एक्ट और टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट, और मिसफॉर्च्यून से माना जाएगा कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। जैसे इसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लो जिससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक पर्सन ए है और वो क्या कर रहा है, लकड़ी काट रहा है कुल्हाड़ी से, एक्स से। एक पर्सन ये लकड़ी काट रहा है, ठीक। अब ये लकड़ी काट रहा है तो पता ही वही लकड़ी काट रहा है, तो लकड़ी काटते समय किसी की लग सकती है, कुल्हाड़ी हाथ से छूट जाए तो लग सकती है। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है और कह दिया है कि भाई हम जो है वो लकड़ी काट रहे हैं, आप दूसरे रास्ते से निकल जाओ। एक बार अपने आप को जहाँ पे काट रहा है वहां पे फेंस भी लगा लिए, चारों तरफ बाउंड्री बना ली है जिससे किसी को हार्म ना हो। इवन देन मान लो कुछ बच्चे जो है वो इस फेंस को कूदते, उसे पता नहीं लगता बेचारे को, और यहाँ आते हैं खेलने लगते हैं। अब इसके हाथ से अगर ये कुल्हाड़ी या लकड़ी बच्चों को लग जाती है और ये इंजर्ड हो जाते हैं तो इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसे क्या क्या चीजें प्रूव करनी होंगी। एक तो ये लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मीन से कर रहा था, इन गुड फेथ में कर रहा था, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था इन बच्चों को मारने का, और गुड फेथ का मतलब है पूरी प्रिकॉशन ली थी इसने, केयर के साथ कर रहा था। तो ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें आंसर देना होता है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ। इसी को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। तो क्या करते हैं कि एक पर्सन है वो लकड़ी काट रहा है और उसी के पास में कई बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और वो कोई वार्निंग भी नहीं देता है और यहाँ लकड़ी काटता रहता है, इससे बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि इसे सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो काम कर रहा था वो विद केयर एंड विद प्रिकॉशन नहीं कर रहा था। एक तो ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। कुछ केसेस भी हैं जो केसेस को ही इलस्ट्रेशन बना के क्वेश्चन पूछा जाता है।
अच्छा केस इसमें है, स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। स्टेट वर्सेस रंगास्वामी में क्या हुआ था, दो दोस्त थे, मान लीजिए ए एंड बी, ये जंगल में गए शिकार करने के लिए। टू फ्रेंड्स ए एंड बी went in a forest for hunting, शिकार करने के लिए गए एक जंगल में। वहां पे ये झाड़ियों, अब दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग कहीं पे ढूंढ रहा है, बी कहीं अलग पे ढूंढ रहा है। अब ए को लगा कि ये जो झाड़ियां हैं यहाँ पे कोई जानवर है, और एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे कोई जानवर ना होके बी ही था। अब ये गन से जो है इसको मारता है और बी की डेथ हो जाती है। अब ए ने क्या किया, बी की डेथ हो गई। अब ये प्ली ले रहा है कि हमसे जो हुआ है ये मिस्टेक में हुआ है। तो सच्चाई यहाँ पे यही है कि ए को सेक्शन 80 का बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शिकार करना लॉफुल एक्ट है, उस समय अलाउ होगा, किया जा सकता था, पहले का केस है। अब अगर यही होता कि शिकार करना जो है वो अनलॉफुल है, अलग पोजीशन होती। हाँ, इस केस में जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जो इसकी गन है, इसका लाइसेंस नहीं था इसके पास। मतलब जो गन इसने रखी थी ए ने, इसका लाइसेंस इसके पास नहीं था। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि जो इसने इसको मारा है उसके लिए तो सेक्शन 80 का बेनिफिट मिल जाएगा, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी गन जो थी वो लाइसेंस नहीं थी, गन का इसके पास लाइसेंस नहीं था। इसके लिए ये तो हो सकता है जो आर्म्स एक्ट है उसमें इसको पनिशमेंट इस बात कर दिया जाए कि बिना लाइसेंस के गन ये रखता है, लेकिन इस बात का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्सीडेंट में इसको बेनिफिट ना मिले। एक तो ये चीज हुई। एक्चुअली में कुछ आपको चीजें ऐसी लगेंगी जो लॉजिकल नहीं लगेंगी, ठीक है, लेकिन हमें लॉजिक तो तब देना होता है जब कंक्लूड करना हो। ठीक, ऑब्जेक्टिव में जब ये प्रॉब्लम अगर हमसे पूछी जाएगी तो हमें आंसर वही लगाना पड़ेगा जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है। या कभी कभी ये तक हो जाता है एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि आईपीसी के इस पोर्शन से ये चीजें बहुत होती हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर यूपी जुडिशरी में कुछ और उसका सही आंसर मानते हैं और मान लीजिए उत्तराखंड में कुछ और मानते हैं। हमें ये तक ध्यान रखना होता है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन अगर उत्तराखंड में हम दे रहे हैं तो इसका आंसर ये लगाना है, उसका ये लगाना है, क्योंकि ये कुछ डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। और देखिए इस पे एक केस हुआ था, इस पे जागेश्वर वर्सेस इम्परर। ये जागेश्वर वर्सेस इम्परर का एक केस था और इसी से मिलता जुलता एक केस था बिल्कुल चतुर्नाथ का। देखिए बिल्कुल मिलते जुलते केस है, जजमेंट डिफर कर रहे हैं एक माइन्यूट से पॉइंट पे। जागेश्वर वर्सेस इम्परर में क्या हुआ था कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, उस लड़ाई को बचाने के लिए एक की वाइफ जो है वो गोद में बच्चे को लेकर बीच में आ जाती है और ये जो है वो मार उसको रहा था लेकिन लग जाता है दूसरे पर्सन को, और ये कहता है कि भाई ये तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए सेक्शन 80 का क्योंकि ये दुर्घटना हो गई, हम इसे तो मार ही नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे इसको बेनिफिट नहीं मिला, नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 इन केस ऑफ जागेश्वर वर्सेस इम्परर। बिल्कुल मिलता जुलता केस चतुर्नाथ का आया, इसमें भी ए और बी मान लो दो लोग लड़ रहे थे। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखा है कि एक अंधेरी रात में, ठीक है,
अब अंधेरी रात में ये भी लड़ रहे थे, मान लीजिए फिर एक वाइफ आती है, उसके हाथ में बच्चा होता है, ये इसको मारता है, बच्चे के लग जाती है चोट, अब ये फिर केस फाइल करता है। यहाँ पे कोर्ट ने बेनिफिट दे दिया इसको, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 इसको प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे ये था कि अंधेरी रात थी, ये जो है वो चीज नहीं समझ पाए, एक्सीडेंट हो गया। अब आपको लगेगा ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन कोर्ट के जजमेंट ऐसे आए हैं। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप देखेंगे दोनों क्वेश्चन आते हैं और दोनों का आंसर हमें अलग अलग लगाने पड़ते हैं। ठीक, कुछ और ऐसे इलस्ट्रेशन है इस पे बहुत इंटरेस्टिंग से। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, जैसे मान लीजिए कोई पॉकेट मार है, पॉकेट मार किसी की पॉकेट में हाथ डालता है इस इंटेंशन के साथ कि वो उसकी जेब से पर्स चुरा ले। अब जैसे ये हाथ डालता है, पॉकेट में एक गन रखी होती है लोडेड, जैसे ये हाथ डालता है लोडेड गन चल जाती है, उसको इंजरी हो जाती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस पॉकेट मार को किस बात की सजा मिलनी चाहिए, उसको जो इंजरी हुई है या उसकी डेथ हो गई है उसके लिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको सजा मिलनी चाहिए सिर्फ पॉकेट मारने के लिए, क्योंकि पॉकेट मारते समय एक्चुअली में इनका ये कहना था कि जो आप एक्ट कर रहे हैं और जिस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं और जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो इस केस में, पॉकेट मार वाले केस में इनका ये कहना है कि लायबिलिटी उसकी केवल किस बात तक की होगी, पॉकेट मार रहा है इसके लिए उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और उससे अगर किसी को इंजरी हुई है तो उससे नहीं मिलना चाहिए। या मान लीजिए जैसे हम ही है, हमारी गन किसी दूसरे के पास है, गन हमारी ही है, अब हमारी गन किसी दूसरे के पास है, अब हम उससे जबरदस्ती छीन रहे हैं। अब जबरदस्ती छीनते समय हमसे वो गन चल जाती है, उसको चोट लग जाती है, और हम बेनिफिट ले सेक्शन 80 का नहीं मिलेगा। क्योंकि कोर्ट ये कहता है, लॉ ये कहता है कि ठीक है गन आपकी है, लेकिन किसी से अपनी गन वापस लेने का ये लीगल तरीका नहीं है जो आप कर रहे थे। इलस्ट्रेशन है कुछ ये, बाद में कुछ ओवर रूल भी हुए, लेकिन अब लॉजिकल है या इलॉजिकल है। जैसे टॉर्चेस लायबिलिटी की जब आप पढ़ते हो तो जो कस्तूरी लाल वाला केस है, हमें लगता है ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन उस समय सॉवरेन और नॉन सॉवरेन का डिफरेंस था तो ऐसा हुआ। तो इसको आप जो भी पॉइंट्स हैं अच्छे से तैयार कर लीजिए, एज इट इज समझ लीजिए, कहीं पे अपना बना लीजिए, क्योंकि जब भी इससे क्वेश्चंस आएंगे सही आंसर तभी होगा जब आप इसी हिसाब से चलेंगे। कि अगर घूंसे वाला आता है या छड़ी वाला आता है तो अंधेरी रात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। और गन वाला अगर आएगा ये तक हो सकता है वो उसमें इलस्ट्रेशन में फंसाने के लिए कह देते हैं कि लाइसेंस ही गन नहीं थी उसके पास, उस गन का लाइसेंस नहीं था, इवन देन वो किसमें आएगा, एक्सीडेंट में आएगा। तो ये हमारा जनरल एक्सेप्शंस पे कुछ टॉपिक हमने लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा सेक्शन 81 से 86 तक उसको कवर करेंगे। बाकी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।